Okay, big hello and welcome back. So I hope it's a happy new year for everybody. A renewed, vigorous happy new year to be precise. And already messages are there for happy new year and all. Good morning. Harshit, Aryant, Rupal, Parth, Dhruv with a namaste. Arnav, good morning. Arnav has also asked, "Kya finally school aayi hai?" So finally, our family quarantine is over. So back to school. Garv as usual, Desi style, Pranam. Kumar Aditya, Raj Shekhar on the line. Okay, Om Pathak, Krish. Okay, Mansha. Aryant has pointed out कि अभी भी हाफ शर्ट है. You know, you won't believe it. टोटल मेरे पास 4 मैसेज आए से आए. ये जो छुट्टियां थे ना, तो देयर वर टोटल 4 मैसेजेस एंड लेट दैट बी अ सीक्रेट कि कौन-कौन से लोगों ने मैसेज किए थे. ऑल आस्किंग द सेम थिंग कि अभी भी आपके हाफ शर्ट में ही है. So I just only said that let the curiosity be there and let it be resolved after holidays again. And Krish has given an interesting news, and that is कि इंडिया का मैच देखो 24 ओवर बचा है और 5 विकेट इंडिया का भी बचा है. So that's the story of it. So interesting story rather. Chalo, anyway, let's get on to our work. Last class we were discussing about I think thermometry. We were discussing about temperature scales and all. After that, the next topic is टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि हमने कुछ क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे. ठीक है ना? तो दैट वाज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. आज हम लोग करेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बट बिफोर आई गो अहेड विद द टॉपिक्स, आई मीन वन अनाउंसमेंट एंड दैट इज तुम लोगों का एक हाफ ईयरली टाइप का एक एग्जाम होगा. प्री हाफ ईयरली या प्री एनुअल कहा जाएगा उसको. One reason is that maybe because इस बार written test अच्छे से नहीं हुआ. It was all online, come offline, come whatever. तो इस चक्कर में क्या है कि एक प्री एनुअल टेस्ट इस बार लिया जाएगा. ठीक है? टेम्परेचर स्केल्स. आज हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है? थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर एक रॉड होता है, लेट्स से अगर L नॉट लेंथ का, अगर एक रॉड L नॉट लेंथ का होता है और उसको मैं अगर गर्म करता हूं तो थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है. इन दैट केस ये बढ़ जाता है बाय लेट्स से अमाउंट ऑफ डेल्टा L. और वो डेल्टा L कितना होता है? डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट अल्फा थीटा. क्लासेस हाँ ऑनलाइन होंगे. There is one more question also. There are one or two more questions. Let me quickly address. करते हैं. Questions do not end. Let's proceed. तो जो मैं बोला is that delta is equal to L naught alpha theta. L naught is the initial length. Obviously, ये हो गया initial length. Alpha is called as thermal expansion coefficient या linear expansion coefficient. ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं as linear expansion coefficient. ठीक है? और थीटा is temperature rise. Mind you, theta is not temperature, theta is temperature rise. और अल्फा क्या है? अल्फा is a material property. यानी कि स्टील होगा तो चाहे कितना भी बड़ा रॉड ले लो, पतले ले लो, मोटे ले लो, जो मर्जी करो, उसका अल्फा हमेशा सेम होगा. तो it is a material property. It is a material property. ठीक है? So this is about straight line. इसके बाद आता है this is linear expansion, यानी length का expansion, यानी linear expansion. इसके बाद आता है what is called as area expansion या superficial expansion, यानी area expansion, area or you can say superficial expansion. ठीक है? इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं. अगर एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा तो एरिया में इंक्रीज होगा. तो लेट अस से अगर ये लेंथ L है और इसका अगर ब्रेड्थ B है तो इसके एरिया क्या होगा? A नॉट इक्वल टू L नॉट B नॉट.
So therefore the area will be equal to A naught will be equal to L naught into B naught. ठीक है, और A थीटा क्या हो जाएगा? A थीटा मींस एरिया आफ्टर ए टेम्परेचर चेंज ऑफ थीटा. क्या हो जाएगा ना? L थीटा into B थीटा which will be L naught into 1 plus alpha theta into B naught into 1 plus alpha theta is equal to L naught into B naught is A naught into 1 plus alpha theta whole square. Now that is approximately equal to A naught into 1 plus 2 alpha into theta. And this 2 alpha will be written as beta. So therefore you will have A theta is equal to A naught into 1 plus beta theta, or you can say that delta A is equal to beta A naught into theta. Beta is equal to twice alpha, and beta is called as area expansion coefficient. So this beta will be called as area, or you can say superficial expansion coefficient. Actually ये बहुत सिंपल चीज है, इससे मैं बहुत क्विकली लेके जा रहा हूं. इसके बाद आ जाए वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम के साथ में होगा तो एक एच नॉट भी आएगा, है या नहीं? तो यानी अब बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ठीक है, तो कुछ L नॉट B नॉट H नॉट ले लो. L नॉट B नॉट. यानी बहुत ब्लर आ रही है, स्क्रीन बहुत ब्लर है. सर अभी मत मिटाना. अच्छा ब्लर है बहुत ज्यादा. मैं भी देखता हूं, ठीक है ना? चलो उठाना ब्रो, रब मत करो नीचे वाला. चलो चलो लेट्स गो अहेड. तो देखो कोई नया चीज नहीं है, उसी पे बेस्ड है. वॉल्यूम वाला क्या होगा? L नॉट B नॉट H नॉट. तो V थीटा क्या हो जाएगा फिर? मैं ये तो आई थिंक ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे कि L नॉट के साथ भी 1 प्लस अल्फा थीटा, B नॉट के साथ भी 1 प्लस अल्फा थीटा, इस तरीके से. यानी V थीटा विल बी L नॉट B नॉट H नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा थीटा होल क्यूब, और इस वजह से हो जाएगा इक्वल टू V नॉट इनटू 1 प्लस 3 अल्फा थीटा. मैं क्या कर रहा हूं? बाइनोमियल लगा रहा हूं. क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, 10 टू द -5 -6 उस रेंज में होता है. तो देखो वेरी स्मॉल वैल्यूज, तो देखो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं. तो अगेन सेम थिंग. सो देयरफॉर डेल्टा बी क्या हो गया? 3 अल्फा V नॉट थीटा. अब हम 3 अल्फा को बोलेंगे एज गामा, सो दैट विल बी गामा V नॉट थीटा. तो गामा क्या हो गया? The volumetric expansion coefficient. Volumetric expansion coefficient. ठीक है, तो that is about your 3 expansion coefficients. चलिए आपस में कैसे रिलेट हो गए ना? अल्फा is equal to बीटा by 2, ठीक है, is equal to गामा by 3. यानी अल्फा बीटा गामा. ठीक है, this is about the nature of expansion. So I think it's very easy. Rules are very simple, relationships are very plain and linear, इसलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद तुम लोगों ने बचपन में किया था, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और मैं उसका लॉजिक पूछूंगा. और वो ये है कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट लिया. So it's a rectangular plate. You might take a circular plate also. It's your choice. और मैंने क्या किया? एक कैविटी बनाया. रेक्टेंगुलर प्लेट है, ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर प्लेट है, मैंने एक कैविटी बनाया. क्वेश्चन इज दैट अगर इसको गर्म करते हो तो कैविटी का जो डायमीटर है, कैविटी डायमीटर का क्या होगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन. वैसे मैं देख लेता हूं अगर कुछ पॉसिबिलिटी बने. ओके, तो मैं इस पे पोल ही करा देता हूं, देखता हूं क्या रिजल्ट आता है ना?
तो हियर गोज द पोल, कैविटी डायमीटर का क्या होगा? ठीक है, कुछ डिक्रीज भी आ रहा है, कुछ इंक्रीज भी आ रहा है। ओके, कई सारे आंसर्स आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन भी आया है, दैट इज फ्रॉम आदित्य माथुर, एंड दैट इज व्हेन विल दिस प्री एनुअल स्टार्ट? बेटे प्री एनुअल कुछ 20-22 इसी रेंज में स्टार्ट होगा, और अगर लेट से लेट हुआ तो 25 तक तो नहीं खींचेगा मेरे ख्याल से, जल्दी स्टार्ट होगा। बट मैं तुम लोगों को क्लियरली बता देता हूं इज दैट प्री एनुअल्स में अच्छे से दो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट देन उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का तैयारी चलता रहे, कॉम्पिटिशन्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ उसके लिए भी तैयारी कर लो, ऐसे नहीं है। ठीक है, चलो एनीवे, well there are more questions. Aryan has asked one more important question. लेकिन आर्यन तुम ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये तुमको हर टॉपिक में पूछना चाहिए। इसलिए मैं हर टॉपिक के लिए इस डिस्कशन को परमानेंटली रोक देता हूं। let me first of all tell what is Aryan's question. आर्यन का क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो अल्फा एल थीटा इसका कोई प्रूफ भी है? द आंसर इज सिर्फ अल्फा एल थीटा नहीं, फिजिक्स के कोई भी रूल्स एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स का कोई प्रूफ नहीं। पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स के, इनफैक्ट व्हाई शुड आई से फिजिक्स है, पूरे साइंस के कोई भी लॉज प्रिंसिपल्स के कहीं कोई प्रूफ नहीं। तो क्या होता है फिर, है ना? तो ये होता है कि उसके ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेस करके हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स को या रूल को हम लोग चेक करते हैं इन मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। अगर विदाउट एनी एक्सेप्शन वो रूल अगर फॉलो हो रहा है और तुम प्रेडिक्ट करते हो और वही रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इज एक्सेप्टेड एज अ रूल और प्रिंसिपल और लॉ और व्हाटएवर थ्योरम और व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है ना? तो देयरफॉर ये जो फार्मूले मैंने बताया, इस टाइप के फार्मूलों को सारे एक्सपेरिमेंट से कराते हैं, नो प्रूफ एज सच। ठीक है ना? चलो एनीवे, लेट मी गिव द रिजल्ट फॉर द पोलिंग। आई मीन लेट्स एंड द पोलिंग। पोलिंग का रिजल्ट ये आ रहा है कि आई थिंक आई हैव टू शेयर इट आल्सो। शेयर मैं कर रहा हूं इज दैट मोर देन हाफ ऑफ टोल्ड इंक्रीज, कुछ डिक्रीज भी है और कुछ रिमेन सेम भी है, पर डिक्रीज का नंबर कम नहीं है, 8 जरा डिक्रीज के भी सोच रहे हैं, रिमेन सेम भी सोच रहे हैं। चलो ठीक है, अब एक काम करो, वन लाइन में या 1 और 2 लाइंस में बता सकते हो ऐसे क्यों इंक्रीज करेंगे। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये लॉजिक में गलत क्या है। ठीक है, इस लॉजिक में क्या गलत है वो बताओ। इज दैट ये देखो, ये एक्सपैंड करेंगे, ये एक्सपैंड करेंगे, ये भी एक्सपैंड करेंगे, तो ये एक्सपैंड करेंगे ये वाला, और ये वाला भी इधर से एक्सपैंड करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, दोनों तरफ से कंप्रेस हो गए, तो इसलिए छोटा हो जाएगा। ये मैंने एक लॉजिक बताया, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि मेरा लॉजिक सही है, पर मैं कह रहा हूं अगर मान लो मेरा लॉजिक गलत है तो इसमें क्या गलती है ये बताओ। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन इज अर्नब्स आंसर। ओके, गलती से रिमेन सेम कर दिया था मैंने, अर्नब इज सेइंग कि मुझे भी इंक्रीज ही करना था। चलो कोई बात नहीं, दैट इज ओके। ओके, देहम से इसकी कैविटी पर भी तो पार्टिकल होंगे जो एक्सपैंड करेंगे। एक्चुअली ना देखो, आई डोंट नो व्हाट यू मीनिंग बाय पार्टिकल। इफ यू मीनिंग बाय पार्टिकल एन एटम और अ मॉलिक्यूल, उसके साइज नहीं बढ़ता। थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? थर्मल एक्सपेंशन इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। देखो सॉलिड्स है, सॉलिड का जो एटम्स है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, वो सारे एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चारों तरफ से, तो दे शुड ऑल कोलैप्स। बट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑल दी सॉलिड्स आर हैविंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू व्हिच दे आर वाइब्रेटिंग। तो मान लो मैं एक मॉलिक्यूल एटम हूं, मैं वाइब्रेशन कर रहा हूं, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जगह ले रहा हूं। बट अगर मान लो मेरा हीट एनर्जी बढ़ जाएगा, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली आई विल व्हाट स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर एंड मोर, so I will require more space, I will start pushing out others, and that's how expansion takes place. This is expansion principle. अब वो अगर मान लो, एक्चुअली क्या ना, बहुत लंबे एक्सप्लेनेशन आ रहा है, कई लोग दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं लंबे एक्सप्लेनेशन, इतना पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो व्हाट आई डू इज दैट, क्योंकि बहुत लंबे दे रहे, मैंने इसलिए बोला था 1-2 लाइन में, तो व्हाट आई डू इज दैट आई एम नॉट रीडिंग देम, आई एम जस्ट टेलिंग द एक्सप्लेनेशन। या इसको मैं प्रूफ तो नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक एक्सप्लेनेशन ही बोलूंगा, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड। और इसको अपने आप मिला लो, तुमने क्या सोचा, क्या लिखा, क्या बोला है, और मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं काम करता हूं, मैं इस कैविटी पे कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, है ना, 3 मॉलिक्यूल, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कैविटी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अब एक चीज जरा सोचो, कैविटी के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या कुछ स्पेस भी होगा। अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो
और अगर डायमीटर घट जाए, तो अगर डायमीटर घट जाए तो मॉलिक्यूल्स तो वही है। अब देखो मॉलिक्यूल के स्पेस को कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सारे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर अंदर की तरफ मूव करते हैं, इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद उनके स्पेस यानी बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन का मेन कॉज ही यही है कि हम और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो हम एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो therefore that can be explained only when you increase it। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है अपने लेवल से दूर चला जाता है। जब रेडियली बाहर की तरफ जाते हैं तो दैट केस क्या होता है, उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता है। एंड दैट इज द रैशनल एक्सप्लेनेशन as to why it is going to increase। ठीक है, चलो anyway, let me also ask you a very simple question, and that is, suppose I say एक मटेरियल है जिसका इनिशियल डेंसिटी है 4000 kg per meter cube, 4000 kg per meter cube, उस मटेरियल का अल्फा दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 5। अल्फा का यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है ना? तो केल्विन इनवर्स ये दिया हुआ। और हाँ, थीटा इज द टेंपरेचर इंक्रीज, थीटा इज द टेंपरेचर इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल density। Simple question, very simple question to start off with। Go ahead, quickly find out। Simple question to start off with, जल्दी आंसर करो। मैं उस भव्य वाले लॉजिक को मैं एक बार सुना देता हूं मैं क्या, व्हाट शी हैज रिटन इज दैट कि आपके लॉजिक में आप वॉल्यूम तो सेम रख रहे हो पर वॉल्यूम तो बढ़ेगा। नहीं, मैंने वॉल्यूम सेम नहीं रखा था, मैं करता इंक्रीज कर रहा था चारों तरफ। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था जो कि गलत है, मैं खुद ही कर रहा हूं कि मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है। तो मैंने बोला था कि एक काम करो, इसको भी एक्सपेंड करो, इसको भी एक्सपेंड करो, तो यानी यहां से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और बाहर बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम घट रहा है, बाहर वाला हो सकता है कि ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और अंदर वाला कम डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर देयर इज स्टिल अ नेट वॉल्यूम इंक्रीज। ये भी तो हो सकता था ना। वो अलग बात है कि रीजनिंग गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो मैंने बताया था वो रीजनिंग गलत है, तो मैंने इसलिए बोला था कि भाई इसमें बताओ क्या गलती है, ठीक है ना? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा कि इससे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। जो मैंने लॉजिक बताया था, जो गलत लॉजिक बताया था, इसमें वॉल्यूम तो इंक्रीज हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं था। चलो खैर, एनीवे देयर आर सम मैसेजेस कमिंग अप रिगार्डिंग द आंसर। some answers are coming up 3971.4 और मैं देख रहा हूं कि लगभग हर एक का 3971.4 आ रहा है। हाँ, वही क्रिश हैज गिवन कि 4000 by 1.0048। हाँ, वही एक्चुअली पता है मैं क्या बोलूंगा इज दैट rho naught is equal to m by v naught, rho theta is equal to m by v theta, which is equal to m by v naught into 1 plus 3 alpha into theta, है ना? तो m by v naught को तो मैं rho naught लिख देता हूं is equal to rho naught into 1 plus 3 alpha theta। तो therefore जो डेल्टा रो होगा, that will be equal to minus 3 alpha rho naught theta, बस that's it। तो minus 3 into alpha 6 into 10 to the minus 5 into rho naught 4000 4 into 10 to the power 3 into theta is 40, that's it। बाकी तो कैलकुलेशन है, एक बार देख लो, है ना? isn't it 96 into 3, हाँ तो ऐसे कुछ आएगा 288 28.8 मीटर, है ना? और 10 to the power 3 4 28.8, हाँ। So that is equal to minus of 28.8। Then rho theta will be 4000 minus 28.8, ऐसे कुछ आता है, एक बार जरा चेक कर लो। I hope my calculation is fine, ठीक है? So that is the answer to the कृष्ण सेट की प्लेट में तो 2 अल्फा होगा। नहीं, प्लेट का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्वेश्चन तो डेंसिटी का है, ठीक है ना? क्वेश्चन तो डेंसिटी का है बेटा।
ये क्वेश्चन तो डेंसिटी दिया था और रो होता है वॉल्यूम डेंसिटी, सॉरी सर, ठीक है। सिग्मा होता है एरिया डेंसिटी अगर उसमें पूछा गया होता तो, बट मैंने तो वॉल्यूम का पूछा है तो देयरफॉर 3 वाला ही होगा। सो आई थिंक दैट्स द आंसर। तो अपने आप कर है ना, तो यानी 3971.2 या जो भी आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा डेसिमल वाला 4 का गड़बड़ है, वो मुझे लगता है कैलकुलेटर से किए होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर लेट्स अल्फा नॉट बाय 1 + 3 अल्फा थीटा किया था ना, तो उससे थोड़ा सा आ रहा है अलग। हाँ मैं समझ गया, एक्चुअली मैं समझ गया, वो मैंने बोला कि अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेटर से डिवीजन करके करोगे तो हल्का सा डेसिमल में अंतर है, बट आई थिंक दैट्स गुड एनफ। पॉइंट 2 और 0.4 में चलता है, इतना हो गया। ओके, और टू मोर क्वेश्चन, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इससे हार्डली क्वेश्चंस आते हैं, तो टू मोर क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट सपोज मैंने एक पेंडुलम क्लॉक को पेंडुलम क्लॉक पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट देन अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, इसलिए उस पे नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, इज दैट एक पेंडुलम क्लॉक जो कि सेकेंड्स पेंडुलम है, और जो जिस रॉड से बना हुआ है, मतलब एक रॉड का बना हुआ है, लेट्स से उसका अल्फा है सपोज, जो भी थ्रेडेड है उसका अल्फा है सपोज 40 into 10 to the power -5 या 4 into 10 to the power -5, ये दिया हुआ। और क्वेश्चन इज फाइंड द लॉस इन टाइम इन समर। सपोज मैंने इस पेंडुलम को विंटर में सेट किया, अब मैं पूछ रहा हूं समर में बताओ एक दिन में टाइम क्या लॉस होगा। फाइंड द लॉस इन टाइम इन समर इन 1 डे। ठीक है, इन 1 डे। देखो एक दिन में कितना लॉस होगा पेंडुलम में। यू नो व्हाट, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जो पेंडुलम क्लॉक यूज होता था, दैट यूज्ड टू बी एक्चुअली अ पेंडुलम क्लॉक। आज के दिन में पेंडुलम से क्लॉक नहीं चलता, आज के दिन में क्लॉक के बैटरी से पेंडुलम चलता। ये ना पूरा रिवर्स हो गया। हमारे टाइम पे ना हम एवरी संडे, मुझे याद है, टेबल के ऊपर चेयर रखता था, मैं चेयर के ऊपर खड़ा होता था और एकदम ऊपर जो एक कोने में वो होता था पेंडुलम क्लॉक, उसका दरवाजा जो भी उसका डोर टाइप का होता था, उसको खोल के एक चाबी होता था, चाबी को अंदर डाल के फिर मैं उस पे कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 20 या 25 टर्न्स करता था, उसमें कुछ नंबर था, इतने टर्न्स करके छोड़ देता और अगले संडे तक वो लगभग खत्म हो जाता था, फिर अगले संडे ही करता था। ये मेरा एवरी संडे का रूटीन होता था। तो बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उसमें किया था मैंने जब छोटा था, बट देन अब तो खैर यू नो नाउ तो क्या शेयर करेंगे, है ना। चलो, तो फाइंड द लॉस इन टाइम इन समर इन 1 डे, दैट्स द क्वेश्चन। अर्नव इज हाँ, वो मैं बोलने वाला था, इज दैट सपोज देयर इज अ 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेंपरेचर, 30 डिग्री सेल्सियस राइज। जैसे मान लो विंटर में मान लो 5 डिग्री और समर में मान लो 35 डिग्री एवरेज टेंपरेचर, ऐसे मान लो। तो उसके हिसाब से चेंज इन टेंपरेचर ले लो 30 डिग्री सेल्सियस एंड देन फाइंड आउट द लॉस ऑफ टाइम पर डे क्विकली। ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, लेट मी स्टार्ट, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको देख के मुझे लग रहा है कि शायद इस पे थोड़ा डिस्कशन जरूरी है, तो लेट मी स्टार्ट। पहली बात तो सेकेंड्स पेंडुलम इज अ वेरी कॉमन टर्म, इसके याद रख लेना, ये याद रखना। इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। क्या बोला मैंने? 2 सेकंड, मैंने सेकंड नहीं बोला, ध्यान रखना। यानी इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड्स होता है। और t as I said 2 pi under root of L by g, तो है ना। अच्छा, तो यानी 2 is equal to 2 pi under root of L by g, तो 2 तो कैंसिल होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली रूट g is approximately equal to pi approximately, so I can cancel it. oh अभी भी ऑनलाइन, so I can approximately cancel it, तो L is approximately 1 meter, तो L approximately 1 meter आता है फॉर अ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का ध्यान रखना, टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, ना कि 1 सेकंड।
कई बार हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। चलो दैट्स वन। उसके बाद ये है कि t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l नॉट बाय g, t थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ l थीटा बाय g। ओके, लेट मी राइट t थीटा इज t नॉट प्लस डेल्टा t बाय t नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा l थीटा यानी अंडर रूट ऑफ L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा बाय L नॉट, यानी 1 प्लस अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा t बाय t नॉट क्या होगा, ना 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ना इक्वल टू अल्फा थीटा बाय 2। तो देयरफॉर डेल्टा t इज इक्वल टू अल्फा थीटा बाय 2 इंटू t नॉट। अल्फा क्या दे रखा है 4 into 10 to the minus 5। अच्छा पहली बात तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में एल नॉट का जरूरत नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई ये सब नॉलेज होना चाहिए, बट इसमें एल नॉट का कोई जरूरत नहीं था। एनीवे देखो एल नॉट कैंसिल हो रहा है, सो डोंट थिंक दैट द एल नॉट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, एंड देयरफॉर डोंट थिंक कि ये जो मैंने डिस्कस किया ये इसलिए डिस्कस किया कि भाई मुझे एज इफ लेंथ का जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, ये विदाउट लेंथ ही आएगा, ठीक है। इनटू थीटा 30 into t naught. Now, if you want to find out per second, it's a different matter. Why not use t naught as the entire day? तो उससे number of seconds lost per day आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो per day पूछ रहे, find the loss in time in summer in 1 day. तो एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो 1 day is equal to 86400 सेकंड। तो यानी मैं इसको लिख दूंगा into 86400, बस that's it। तो बाकी अपना कैलकुलेट कर लेना, 2 से 2 है ना, जो कैलकुलेट कर ले, या चलो छोड़ो अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कहाँ ढूंढेंगे हम कैलकुलेटर, पता नहीं, पता नहीं कैलकुलेटर ही खो गया मेरा। चलो खैर, एनीवे यू डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, सो आई थिंक यू विल गेट इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें दो तीन चीजें मैंने बता दिया, एक दिन का याद रखना, ट्राई टू रिमेंबर दिस and try to remember these two things, ध्यान रखना। Next question, suppose I have an equilateral triangle L naught L naught L naught, इसका जो अल्फा है वो है अल्फा, इसका दे रखा है 3 अल्फा और इसका दे रखा है 8 अल्फा। तीनों रॉड्स के एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है। अच्छा इसमें दो तीन आंसर्स आ रहा है, एक 51.84, एक 103.68। मुझे नहीं पता कौन सा सही है, आई थिंक 53 वाला लग रहा है मुझे, या 51 वाला लग रहा है मुझे, है ना, फिर भी चेक कर लेंगे। चलो एनीवे, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल L नॉट L नॉट L नॉट अल्फा 8 अल्फा और 3 अल्फा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसका टेंपरेचर थीटा बढ़ा देता हूं। तो मैंने 3 रॉड से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तीनों मटेरियल अलग अलग है, इसका अल्फा 3 अल्फा और 8 अल्फा। क्वेश्चन इज ये वाला, find small change in angle B on heating by theta degree Celsius. Go ahead quickly. 51.84 वाला it seems के करेक्ट है, हाँ चलो ठीक, whatever मैं, ठीक है। तो there could be 3 possible questions, one for angle B, one for angle A and one for angle C। एक का तो निकालो। चलो क्विकली गो अहेड, ठीक है। तो मेरा देखने का जरूरत नहीं है, खुद ट्राई करो, मैं वेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, बिकॉज़ आई विल आल्सो टेक सम टाइम टू डू इट। तो मैं लिखूंगा ठीक है। तो 2ac cos b इज इक्वल टू ये लिखता हूं, ठीक है।
If somebody has got the answer, you can definitely send it as and when you get the answer. In the meanwhile, मैं भी कर रहा हूँ, देखने का जरूरत नहीं है, खुद करो, है ना? चलो अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? सर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में माइनस 2b dp आएगा ना? अच्छा हाँ, माइनस, ठीक, ये माइनस में आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये माइनस होगा, ये गलत हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो फिर तो चेंज हो गया ना, कितना चेंज हुआ? 8 प्लस 1 9 माइनस 1 6, और इधर से आ रहा है 4.5, ये हो गया 1.5, ये 3/2, तो सिर्फ √3 आता है ना? ये बता कैलकुलेशन चेक कर लो, तो आई थिंक सिर्फ √3 आता है, 5√3 नहीं आ रहा, √3 आ रहा है, तो भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। So what I've done is that I've applied differential in the entire equation. कौन सा? That 2ac cos b is equal to a square plus c square minus b square. बस उसके बाद तो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल लगाऊंगा तो एक एक टर्म को डिफरेंशियल वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 2da into c cos b प्लस 2a into dc into cos b, ये वाला प्लस 2ac as it is, और cos b का तो माइनस sin b into db, और उधर का फिर वही a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैंने गलती से प्लस किया था, तो एक बार चेंज कर लेना, करेक्ट कर लेना, तो ये माइनस हो, तो इधर का लिखा, इधर का लिखा, इधर का लिखा, तो 8 + 1 9 - 3 6, है ना? 6, और इधर से आई थिंक 4.5 आ रहा है, तो 6 - 4.5 इज 1.5, यानी 3/2, तो 3/2 आ गया माइनस √3, आई थिंक दैट्स इट। तेरी इसका वैल्यू db का आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ √3 इनटू अल्फा इनटू थीटा। प्लीज हैव अ वो चेक कर, ठीक है? आई होप दैट्स ओके, ठीक है? एक बार क्वेश्चन का फॉर्म दोबारा एक बार देख लो, इन केस अगर कुछ पूछना है। आई थिंक ऊपर का पार्ट तो मैं मिटा देता हूं, नीचे का नहीं मिटा रहा, इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द डिटेल्स।
इसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक है। अब सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक है थर्मल इलास्टिसिटी। Thermal elasticity. Now, thermal elasticity means elastic force is created not because of some expansion force or some compression force that are given separately, but because of which is generated. Yani expansion and compression generated because of thermal expansion. Let's go ahead. Just suppose दो rigid walls है. Suppose दो rigid walls है, जिसके बीच में मैंने क्या किया, एक रॉड लिया जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है सपोज A, इसका यंग्स मॉडुलस है सपोज Y, अल्फा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और इनिशियल लेंथ है सपोज L. Mind you, these are rigid walls. What I now do is that I start heating the rod. तो अगर मैं इस रॉड को हीट करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा? लेट अस से मैंने टेंपरेचर बढ़ा दिया बाय थीटा, तो क्या होगा ना, इससे गर्म होगा तो ये रॉड एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा, लेकिन वॉल उसको एक्सपैंड करने देगा नहीं। यानी क्या होगा, अंदर से कोशिश कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी देखो, मैंने अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया, ना ही ऐसे लगाया ना ही ऐसे लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है बिकॉज़ ऑफ रिजिड वॉल्स कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। सो दिस स्ट्रेस is called as thermal stress. Question is, how much will be the thermal stress? Go ahead and find it out. Simple question hai, and then we will move on. ठीक है? So question is, what is the thermal stress? मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे स्ट्रेट अवे आ रहा हूं। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि एज इफ ये मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ना चाह रहा है, तो कितना बढ़ेगा? अगर वॉल्स नहीं होते तो एक्सपैंड कर गया होता, यानी अल्फा एल थीटा एक्सपैंड कर गया। मैं कह रहा हूं कि काम करो, इमेजिन करो कि वॉल ने उतना कंप्रेस कर दिया, यानी मैं डेल्टा एल को लिख दूंगा अल्फा एल थीटा। बाय द वे, मुझे मालूम है कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, which is equal to stress by delta L by L, which is again equal to stress by, अब delta L के जगह लिख दो अल्फा L थीटा, यानी अल्फा L थीटा by L। यानी क्या हो गया, स्ट्रेस which is equal to force by area is equal to क्या होगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, है ना, यानी हो गया y अल्फा थीटा। तो therefore the force generated in the rods, wall से force मिलेंगे F इधर से there, वो कितना होगा, a y alpha theta। Interestingly, the stress that has been generated in this particular question, मैं generalize नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं in this particular question is independent of the size of the material, है ना। ये मोटे रॉड लोगे, पतले रॉड ले लो, लंबे रॉड ले लो, छोटे रॉड ले लो, जो मर्जी करो, लेकिन स्ट्रेस देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस, यानी ये हो गया independent of dimensions। बट ध्यान रखना, मैं ऐसे कोई जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में the thermal stress is independent of the dimensions, nothing that it is some kind of a general formula या general formulation, no। ठीक है, तो therefore आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में I've started getting some answers. Aditya and Som has given the right answer. बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं, so this is the basics, this is the basic idea। अब मैं इसमें क्वेश्चन दूंगा, and that is, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड लिया, मतलब एक नहीं सॉरी दो रॉड्स लिए, और दोनों रॉड को रख दिए, और इसका है a y l अल्फा, इसका है 3a 3y 3l and 3 alpha। Not only that, suppose the wall is again rigid,
क्वेश्चन इज, ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन, क्वेश्चन इज फाइंड द मूवमेंट ऑफ जंक्शन when heated by टेम्परेचर थीटा। सपोज मैंने क्या किया, इस पूरे रॉड के सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अभी रॉड्स तो एक्सपैंड करना चाहता है, लेकिन वॉल्स उसको रोकने नहीं देंगे, एक्सपैंड करने नहीं देंगे। क्यों? रिजिड वॉल्स, रिजिड वॉल्स। So question is, what will be the movement of the junction of the two rods? Now you might say, आप तो अभी तो आप कह रहे थे मूवमेंट होने नहीं देगा ना। देखो, वॉल एक्सपैंड नहीं करने देगा टोटल में, लेकिन आपस में तो थोड़ा बहुत कर सकता है। तो आपस में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, because the rods are not equally powerful. That is the case in point. So go ahead, find out the प्लीज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ रॉड्स। वेल सिंपल है, एक रॉड रखा, दूसरा रॉड रखा, बिल्कुल फिट है, दो वॉल्स है, दोनों के बीच में स्पेस है, उसके अंदर दो वॉल्स को जस्ट फिट कर दिया और फिर गर्म करता हूं। तो एक्सपैंड करना चाहता है, बट देन वॉल्स रिजिड है, नहीं करने देगा। सो गो अहेड, फाइंड आउट द एक्सपेंशन, सॉरी फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ द जंक्शन, दैट्स द क्वेश्चन। देखो, the way to approach the question will be like this, that let us remove one side of the wall, यानी एक वॉल को रखो और उस वॉल को हटा दो, तो क्या होगा ना, पहला वाला रॉड भी कुछ एक्सपैंड करेगा, दूसरा वाला रॉड भी कुछ एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन बिफोर आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फुल, इज दैट यहां पे ये वाले रॉड पे जो फोर्स है, देखो इधर वाला वॉल इधर वाले रॉड पे जो फोर्स दे रहा है, लेट अस कॉल इट सपोज F1, और इधर वाला जो दे रहा है, लेट अस कॉल इट सपोज F2। नाउ कैन यू टेल मी F1 F2 में से क्या रिलेशन होगा? F1 ग्रेटर देन F2, F1 लेस देन F2 और F1 इक्वल टू F2? बता सकते हो क्या होगा? F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा? इधर वाले वॉल का फोर्स F2 है और इधर वाले वॉल का फोर्स F1 है, तो F1 और F2 बीच का रिलेशन क्या होगा? ओके, आर्यन has given कि इक्वल होगा, क्रिश says F2 बड़ा होना चाहिए। ओके, देहम is given an answer only 26/4 alpha L theta and so on. श्रेयसी says कि F2 ग्रेटर होगा, ओम पाठक says कि इक्वल होगा। ओके ठीक है, कृष्णागर has now changed the answer to equal। चलो ठीक है, that's the right answer। एक्चुअली तो अनइक्वल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेता हूं और अगर इस वॉल से और इस वॉल से अलग-अलग फोर्स आएंगे, तब तो सिस्टम में मूवमेंट हो जाएगा, पर सिस्टम में तो कोई मूवमेंट नहीं है। क्या हो रहा है? फाइनली इक्विलिब्रियम में है ना, है या नहीं? तो देयरफॉर सारे फोर्सेस बराबर होंगे, यानी स्ट्रेस अलग-अलग होगा रॉड्स में, लेकिन फोर्स बराबर होगा, सो दैट द रॉड्स विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आई होप दैट्स ओके। चलो, तो ये फोर्स इधर आ रहा है। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि दोनों को एक्सपैंड करने दो, कुछ एक्सपेंशन इसका होगा, कुछ एक्सपेंशन उसका होगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों वॉल्स मिला के दबा के दोनों को उतना ही कंप्रेस करेंगे, यानी टोटल elongation has to be also accompanied by total compression of the same amount। हाँ, दोनों के आपस में वैल्यूज अलग-अलग हो सकता है, लेकिन टोटल elongation और टोटल कंप्रेशन बराबर होगा। तो therefore I can say alpha L theta plus 3 alpha 3L into theta has to be equal to FL by AY plus F into 3L by 3A into 3AY, तो यानी 1 by 3 तो 4 by 3, that is equal to 4 by 3 FL by AY, और ये हो जाएगा 9 और 10, यानी 10 alpha L theta is equal to this 4 by 3 FL by AY। L तो कैंसिल, यानी फोर्स आ गया कितना? 15 by 2,
15/2 फोर्स आ गया 15/2 a y अल्फा थीटा, ये आ गया फोर्स। अब मैं कह रहा हूं कि एक चीज इमेजिन करो, ये जो रॉड है पहला वाला, ये पहला वाला रॉड, अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन माइनस इसका कंप्रेशन, यही तो शिफ्टिंग होगा, है या नहीं? तो देयरफॉर शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट विल बी इज इक्वल टू एक्सपेंशन 1 माइनस कंप्रेशन 1। तो एक्सपेंशन 1 क्या है, अल्फा एल थीटा, अल्फा एल थीटा माइनस FL by AY, तो FL by AY में F के जगह पुट करके 15/2, यानी माइनस 15/2 AY अल्फा थीटा, दिस इज F into L by AY is equal to अल्फा L थीटा माइनस AY कैंसिल कर लो, तो क्या होगा 15/2 अल्फा L थीटा, यानी माइनस 13/2। यानी जंक्शन shifts left by how much, 13/2 अल्फा एल थीटा। एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई होप दैट्स ओके। अच्छा, इसके पहले ना देहम का कुछ आंसर आया था, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं। देहम ने कुछ आंसर दिए थे, लेट मी जस्ट चेक इट। 26/4, हाँ बिल्कुल सेम वही, 13/2 26/4 बिल्कुल सही है। ठीक है, देहम का आंसर सही है, बट अब अदर देन देहम नोबडी गिव द आंसर, ये क्या मतलब? चल कोई बात। अब इक्वल वाले आंसर बहुत सारे आए थे, यू नो क्रिश, ओम, देहम, है ना, उसके बाद उसके पहले भी एक दो जने ने और दिए थे, ठीक है, बट आंसर एक ही आया था, एंड दैट इज फ्रॉम देहम, ठीक है ना। चलो, so that was about your thermal expansion, and accompanied with that is also about thermal elasticity, ठीक है। चलो, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, and that is, सपोज मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं, एक सिलेंडर है, इसका एक्सपेंशन है 3 अल्फा, और मैंने एक रिंग लिया है इसके अलावा, ठीक है, एक रिंग रखा हुआ है, फाइन, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ओके। इसका रेडियस है कैपिटल आर, ओ अच्छा चलो इसको कल कर लेंगे, मैंने टाइम देखा नहीं था, ठीक है। There is one question from Aryan also, that is, can we find the shift by compression into minus expansion into? बिल्कुल कर सकते, compression in the second, minus expansion in the rod, उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। सर, हाँ सर जो हमने लिखा है FL/Y मतलब F3L बाय जो दोनों रॉड में FF लिया है, सर ऐसे F थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एंड पे F थोड़ी लगेगा। थोड़ा सा है ना, नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा मैं, हाँ तो मतलब जैसे जो पतली वाली रॉड है, मैं समझ नहीं पाया, जो पतली वाली रॉड है, कोई सी भी रॉड ले लो, दोनों तरफ से F थोड़ी लगेगा, उस पे एक तरफ से F लगेगा, दूसरी तरफ से थोड़ी अलग लगेगा ना, F थोड़ी लगेगा। कैसे अलग हो जाएगा, एक ही बता रहा हूं, अगर ये फ्रंट तो करेगी थोड़ी। वॉल से एफ लग रहा है तो इसको भी एफ लगना पड़ेगा ना, और इधर से भी तो उधर से एफ लगेगा, तभी तो सारे रॉड्स इक्विलिब्रियम में। इनफैक्ट ये जितने भी सरफेसेस हैं आपके कांटेक्ट में, सब में सेम फोर्स लगेगा, एफ एफ एफ, बल्कि टोटल 6 फोर्स दिखा सकते हैं, ये देखो, ये एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन, सब जगह एक्शन रिएक्शन से बराबर है, और रॉड्स में क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर एक रॉड के अंदर रॉड में मूवमेंट हो तो रहा है, एक्सपेंड तो कर रही थी वो, हाँ एक्सपेंड तो कर रही थी, मूवमेंट तो हो रहा है। ना समझे नहीं, मैं क्वेश्चन कब सॉल्व कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मैं समझ रहा हूं। वो बीच जैसे तुमने गर्म करना शुरू किया, उस समय तो कुछ फोर्स बनेगा, तभी तो कुछ हल्का सा एक्सपेंशन और शिफ्टिंग हो रहा है, एग्री,
पर वो सब होके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होके जो भी होना होगा वो हो गया। अब जब थीटा टेम्परेचर बढ़ाना मैंने बंद कर दिया, यानी अब फिक्स टेम्परेचर पे है, बट हाँ शुरू से हाई टेम्परेचर, उसके बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ये जो तुम बता रहे हो ये इन बिटवीन होगा, जब टेम्परेचर को मैंने लेट्स से रूम टेम्परेचर से बढ़ाया और मैं कुछ थीटा इंक्रीज कर रहा हूं, इन बिटवीन यही होगा जो मैं कह जो तुम कह रहे हो कि वो तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं। बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम बीच में नहीं होगा, बट मैं क्वेश्चन कब सॉल्व कर रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका। सो देयरफॉर नो इश्यूज विद दैट। ठीक है ना? ठीक है सर। You are also right. What Aryan is saying is that क्या मैं दूसरे रॉड से नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। And he has given the method also and he is right. And that is compression of second rod minus expansion of second rod. चलेगा? बिल्कुल। पर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। क्यों? उसमें 3 अल्फा, 3a, 3l, 3y, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, और आंसर तो ऑब्वियसली सेम है, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और क्रिश, मैच का क्या खबर है? सर इंडिया ड्रॉ करा देगी सर। ड्रॉ हो जाएंगे, मतलब अभी भी उम्मीदें हैं। 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सर इंडिया ने बिहारी करा देगा। अच्छा, इंडिया हार गया? नहीं सर, हनुमा बिहारी है ना बैट्समैन, वो करा देगा। वो क्या? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आर्यन इज गिवन, अश्विन बहुत अच्छा खेल रहा है। चलो कोई नहीं, खेलने दो।